Hello, ladies and gentlemen. How are you all doing that side? I'm doing perfectly fine on this side. So it has been a very long time and no see from my side. So finally, I decided to come over here all over again so that I can help you guys with your preparations. It has already been 6 days into the notification. The form filling, the date already started by 1st of December itself. To get it filled within this week itself. And the last date to fill the application form is 30th December up till 11 p.m. For the sake of God, do not delay beyond 20th December. Yeah, I mean, you can do it in the 25th or 27th of December also. Okay. But the last parts of year, the last times of the year, people will be in the jolly well mode. So I don't know, like whether you guys will be doing it or not. We are talking about the 2024 first session, and in this session, you will have the both the courses, the NCC special entry and as well as the regular AFCAT entry as well. So let's get started. So online application are invited for the course commencing in the month of January 2025. आपकी जो कोर्स स्टार्ट होंगी वो जनवरी 2025 में स्टार्ट होंगी for the grant of short service commission. ऐसे चलिए थोड़ा सा बात करते हैं वैकेंसीज पे। तो वैकेंसीज अच्छे हैं, ठीक है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए मेन एंड वेमेन, मेन के लिए 28 वैकेंसीज है, वेमेन के लिए 10 वैकेंसीज है। और अगर आप इंजीनियर्स हैं, अगर आप टेक्निकल ड्यूटी में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो देर इज लाइक 149 वैकेंसी फॉर द मेल कैंडिडेट एंड 16 वैकेंसीज फॉर द लेडी कैंडिडेट्स आउट देयर। ओके। सो और इसके बाद फिर आपकी ग्राउंड ड्यूटी है, ठीक है। तो ग्राउंड ड्यूटी में कितने हैं? 22 8 20। so it's like over here close to 100 vacancies over here as well, right? Okay. so आपकी नॉन टेक में भी अच्छे खासे वैकेंसीज है यहाँ पे। और फॉर द विमेन कैंडिडेट, फॉर द लेडी कैंडिडेट आउट देयर 1 2 3 4 5 16 वैकेंसीज यहाँ पे भी है, ठीक है। so overall 16 16 32 and 42. For the women candidate also there is 42 vacancies, which is essentially higher than the vacancies that women candidates will be having through the CDS examination, right? Okay. So the women candidates have got much more higher probabilities of getting through the AFCAT examination as compared to that of CDS examination. As a matter of fact, ladies and gentlemen, I wanted to mention over here that the written part of examination, if you compare the AFCAT and the CDS part of it, the AFCAT, getting through AFCAT is damn easier than getting through the CDS written examination. Okay, so don't miss this opportunity. That's what I would say. And yeah, for sure, women candidates should not miss this opportunity, because how I want to portray is that you get an opportunity to fly the state of the art aircrafts like Rafale and Sukhoi 30 and Mirage 2000, Jaguar, helicopters like Cheetah, Chetak, and whatnot out there. It's a very exciting career out there. Do pull up your socks and get started. Coming back to our point over here, wherein we wanted to talk about the notification. Let's read the disclaimer. What they have written: the vacancies indicated are tentative and subject to change without notice. Actual intake would depend on organizational requirement, various career control mechanism, availability of training slots, and actual number of vacancies accrued in to January 2025. No representation in this regard will be entertained. One seat is reserved from ground duty vacancy for law qualified candidates. Okay. जो बच्चे BA LLB कर रहे हैं, ठीक है, जो BA LLB कर रहे हैं और या फिर LLB कर रहे हैं, ठीक है, 3 साल के ग्रेजुएशन या फिर 4 साल के बीटेक के बाद, they are also eligible and they have got one seat reserved for them. Okay, so it's like JAG entry. I mean, can't say JAG is separate entry as such. So go ahead, law candidates as well.
and do not miss this opportunity, right? नंबर 3 है टाइप्स ऑफ कमीशन एसएससी फॉर मेन एंड वुमेन, ठीक है। तो जो फ्लाइंग कैडर में अगर आप जाते हो तो आपकी 14 साल की नौकरी होगी, ठीक है। आप 14 साल गवर्नमेंट के पैसे पे प्लेन उड़ाओगे, ठीक है। 700 करोड़ 1500 करोड़, ठीक है, कि एक प्लेन उड़ाओगे, ठीक है, एट द गवर्नमेंट्स मनी, ठीक है, एंड गवर्नमेंट वांट्स टू हैव यू, ओके, एंड so why not go all your guns blazing as well? So the initial tenure for SSC officers in the ground duty tech and non-tech branches would be for a period of 10 years. An extension for 4 years may be granted subject to the service requirement availability, willingness and suitability and merit. तो जो ग्राउंड ड्यूटी की जो बात कर रहे हैं अपन लोग, तो टेक और नॉन टेक की जो बात करते हैं तो 10 साल की सर्विस होगी, जिसको 4 साल ये लोग एक्सटेंड, ठीक है। हाँ, और एक्सटेंशन की भी कंडीशंस यहाँ पे हैं। वो लोग आपकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होगी, जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी, उस पर ये लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। सर्विस में जाकर के आपकी डिसाइड होगी कि क्या आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग 10 साल के बाद भी बाहर आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट परस्यूट्स लाइफ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइक दे माइट स्टार्ट कोचिंग समवन, दे माइट गो इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर, और दे माइट गो इनटू सम सिक्योरिटी फर्म, और इनके भी बहुत सारे जो भी 10 साल में स्पेशलाइजेशन किया उस हिसाब से ये लोग अपने नेक्स्ट करियर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान से रखना, एसएससी ऑफिसर्स आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर द ग्रांट ऑफ पेंशन, ठीक है। अगर आप पेंशन चाहिए आपको, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम फौज में चले जाएं और इसके बाद फिर एक बार नौकरी कर लिए तो फिर ज़िंदगी भर मेरे को यू नो कुछ मंथली पैसे आते रहेंगे, सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवर हियर for various reasons, because the government doesn't want to have a lot of burden with them, but at the same time they want to create a pool of man force which are skilled enough to take in any job out there, to take in any challenges out there, and at the same time they are fit and skilled enough to be called in the line of duty as and when required, okay. So these provisions, when you go into the service, you will get to know much deeper about it. Okay. And as far as the CDS SSC is concerned, there is a provision out there that even after you have been relieved from the service, you might be called, depending if your service is required over there. Okay. In COVID, as a matter, the Armed Forces Medical College, during the times of COVID, they released a vacancy wherein they asked for the requirement of the doctors. Okay, they asked, like, if at all any doctors are there, they retired or serving or whatsoever, they can go and serve with them. It can also happen. तो उनकी एज जो है 20 से 24 के बीच होने चाहिए। तो बेसिकली अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2025 के बीच अगर लाई करता है, जो कि दोनों डेट आपके इंक्लूसिव है, अगर आपकी 1 जनवरी 2025 भी है या 2 जनवरी 2001 भी है, तो आपको फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। बशर्ते बस एक छोटी सी शर्त ये है कि आप जो है CPSS PABT वगैरह या अपीयर नहीं किए हो या पहले से पास्ट हो, ठीक है। अगर आप PABT CPSS फेल हो, ठीक है, मेरी तरह मैं फेल था, ठीक है, अपने टाइम पे, तो तो आप एलिजिबल नहीं हो फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ठीक है। और अगर आपको DGCA की लाइसेंस है आपके पास, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की लाइसेंस है, और आप कमर्शियल पायलट हो, आपके पास 200+ आवर्स की फ्लाइंग एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, तो आपका ये जो अपर एज लिमिट है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, और आपको 2 साल का रिबेट और मिलेगा। और इन दैट केस इफ यू आर 2 जनवरी 1999 born हो, even then you are eligible. Like, if you are holding a DGCA का license, then your upper age limit becomes 26 years. ग्राउंड ड्यूटी की बात करते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल की, तो सीधी सी बात है 20 to 26 ईयर्स की एलिजिबिलिटी है इसकी, ठीक है। 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2020 to 2005 तक के जिनका डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर इट, ठीक है। नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन कह रहा है इन लोगों ने दे दिया है, ठीक है, कि करियर इंडियन एयरफोर्स
.cdac.in पे और AFCAT.cdac.in पे आप जाकर के एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट्स आर टू इंश्योर that they have read and understood the details available in the notification before registering, ठीक है। ठीक है, ट्रेनिंग होगी आपकी, स्टार्ट होगी जनवरी फर्स्ट वीक में 2025 में एयर फोर्स एकेडमी डिंडीगल हैदराबाद में, ठीक है। एयर फोर्स एकेडमी डिंडीगल हैदराबाद में आपकी स्टार्ट होंगी। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे जो कि आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एफकेट एग्जामिनेशन में 6 आपके डिफरेंट स्लॉट्स में एग्जामिनेशन होगा विद इन 3 डिफरेंट डेज इन 2 डिफरेंट स्लॉट्स ऑन ईच ऑफ द डेज। तो आपको पूछ सकता है कि एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पे है, ठीक है। सीडीएस में ही पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। साउंड सीटर, ठीक है, बट मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स, मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स आउट देयर make mistakes, okay. On an average 30 to 40% of the candidates make mistake, okay, even in the sitter questions, okay। अभी सर आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे डिंडीगल में है, ठीक है, बेगम पेट में है, हकीम पेट में है, सिकंदराबाद में है, ठीक है, बेलगाम में है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, समझे, और इसी कंफ्यूजन में बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। और फ्लाइंग ड्यूटी और ग्राउंड टेक्निकल बच्चों की जो बात है 62 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की 52 वीक्स की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। और आपकी जो है ट्रेनिंग के बाद जो है आपको रैंक मिलेगा फ्लाइंग ऑफिसर का, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट इन आर्मी एंड सब लेफ्टिनेंट इन नेवी, एंड यू विल हैव योर defense pay matrix will be the as per the 7th pay commission, which will be somewhere around 56,100 rupees to 1,77,500 rupees, ठीक है। In addition to it, you will also be entitled for military service pay MSP, which stands at 15,500 rupees at this point of time। को ऑफर करने के लिए आपके पास apart from a 15,000 apart from a 1,500 crore का aircraft, what all they have to offer, let's read, okay। तो फ्लाइट कैडेट्स जो है उनको स्टाइपेंड मिलेगा 56,100 रुपीज़ का पर मंथ का इनको ट्रेनिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे फ्लाइट कैडेट्स का मतलब ये है कि सिर्फ फ्लाइंग के ही बच्चे को फ्लाइट कैडेट्स नहीं करते, इवन इफ यू आर इन ग्राउंड ड्यूटी और नॉन टेक्निकल ड्यूटी और आप ट्रेनिंग पे हो तो सारे बच्चों को फ्लाइट कैडेट्स ही कहते हैं, ठीक है। फ्लाइट कैडेट्स इसका मतलब ये नहीं कि इट्स ओनली रिलेटेड टू द फ्लाइंग ब्रांच, ठीक है। आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो पर मंथ आपको 56,100 की स्टाइपेंड मिलेगी, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास अलाउंसेस है, फ्लाइंग ट्रांसपोर्ट, टेक्निकल फील्ड असिस्ट, ठीक है, सियाचिन अलाउंस, आइलैंड स्पेशल ड्यूटी, टेस्ट पायलट, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, ठीक है, चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वॉट एवर, ओके। or depending upon the area, the kind of sensitive area you are serving in. Let's say you are stationed in Siachen, so आपको 32,000 और मिलेगा, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस कहते हैं इसको, ठीक है। और मान लो आप जैसे मेरे मामा है एयरफोर्स में, तो ही इज इन सम प्लेस, ओके, एंड दैट्स अ लिटिल सेंसिटिव प्लेस, तो उनको भी थोड़ी बहुत अलाउंस मिलता, बट ही इज अ JWO देयर, okay, but anyways, okay, we'll talk about that। नंबर 10 इज द प्रिविलेजेस, आपको 60 दिन की एनुअल लीव मिलती है, 2 महीने का छुट्टी ले लो, घर पे बिताओ, ठीक है, या फिर एक महीने का 6 महीने पे लो, ठीक है। 20 दिन का आपको कैजुअल डेज लीव मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर गुड विथ योर बॉस दैट और वेदर द टीम इज ऑन द अलर्ट और वॉट एवर, ठीक है, ये काम कर रही है क्या कर रही है, ठीक है, होता ना कभी कभी हाईलाइट पे रहते हैं, तो ऐसे में आपको ये लीव तो मुश्किल से मिलता है, ठीक है। आपकी कितनी अच्छी बन रही है सीओ से, तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बट डू नॉट वरी अबाउट द लीव, इफ यू आर गोइंग इनटू एयरफोर्स तो लीव की क्या ही बात करना हो, तो आपको कभी भी बुला लेंगे, ठीक है। आपकी तो एनुअल लीव भी कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यही बात है। और जो भी है आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस आपको देती है 1.10 CR की, ठीक है, ऑन कंट्रीब्यूशन। आप थोड़ा सा अपने सैलरी से थोड़ा सा इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो जा करके आपको इतने का मिलेगा, ठीक है। और आपका एडिशनल कवर 15 lakhs का मिलेगा, ठीक है। तो ये सब है। और स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, इस पर क्या ही टच करना, ठीक है। आप अकेडमी में रहोगे, यू विल बी प्लेइंग, लेट्स से इफ यू आर इनटू
uh, let's say if you are into hockey team, so you will be playing against IMA, you'll be playing against NDA, you'll be playing against OTA and the things like that. Okay, so adventure sports activities I need not touch. Okay, so this opens your way to live a very thrilling life. Okay, कह रहा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या है 13 नंबर पे एलिजिबल कैंडिडेट्स आर टू register online through separate tabs available for AFCAT entry and CCA special entry. Candidates eligible for one or more entries are registered through are to register separately in each entry. ठीक है, candidates eligible for one or more entries are to register separately in each entry. ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब है, ठीक है, कि आप जो है अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री और एफकैट एंट्री दोनों के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि मतलब हम दोनों में अप्लाई करें तो कर सकते हो, ठीक है, बट ठीक है, यहाँ पे बट वाली बात ये है कि आपको एनसीसी स्पेशल एंट्री और एफकैट एंट्री, ठीक है, वेदर और नॉट, ठीक है, मान लो आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हो, आपकी ए ग्रेड है, ठीक है, और आपने अप्लाई किया, आपने एनसीसी स्पेशल एंट्री के भी थ्रू अप्लाई किया, एफकैट एंट्री के भी थ्रू अप्लाई किया, ठीक है, और आपने एफकैट का एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, सो इवन इन दैट केस यू विल बी अपेयरिंग फॉर वन एसएसबी ओनली, ठीक है, वन एएफएसबी ओनली, ठीक है, फॉर सिलेक्शन बोर्ड एक ही बार जाओगे आप, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एफकैट एंट्री के लिए एक बार जाओगे फिर एनसीसी स्पेशल के लिए एक अलग बार जाओगे, ठीक है, यहाँ पे वो बात नहीं होता है, ठीक है, तो एनसीसी के कैंडिडेट जो है सिंपली सिर्फ एनसीसी एंट्री के थ्रू ही जाते हैं, वो उनको क्या ही एफकैट लिखने का क्या ही जरूरत है ना, ठीक है, तो ये वाली बात हो जाती है। थोड़ा सा टैटू पे बात करते हैं, आई गॉट ए टैटू बट इट्स स्मॉल एंड इनॉशियस, दैट्स नॉट अ बिग डील, सो कहता है परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड on any other part, either visible or non-visible part, except in the inner face of forearm, that is from inside of the elbow to the wrist of the both hands and reverse side of the palm, the dorsal side of both hands, for which a candidate will be required to sign a self-declaration certificate. Okay. Small innocuous tattoos that are not prejudicial to other order and military discipline are permitted. Example, releases, symbols और नेम्स ऑफ नियर एंड डियर वंस। ये सब ठीक है, चलता है, बट इसके बारे में थोड़ा सा दोहरी राय है कि फौज वाले जो है रिस्क नहीं लेना चाहते, बट देन या दे डू गिव यू ए चांस एज वेल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ए टैटू आपकी सिलेक्शन और रिजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप ट्राइबल कैंडिडेट्स हो तो आपकी टैटू अलाउड है, ठीक है, आपकी कहीं पे भी टैटू हो, इवन आपके फेस पे भी हो, ठीक है, बॉडी पे कहीं पे भी हो, ठीक है, as long as it's as per your customs and traditions, it's okay, ठीक है। होते ना कुछ कुछ ट्रेडिशंस के लोग होते हैं, अफ्रीकन, I mean African people are not eligible here, but still the African people, a few of the the people living in the Masai Mara region, okay, and वहाँ के लोग ऐसे करते हैं कि उनके जो नीचे वाले जो होठ होते हैं उस पर बड़ा गोल गोल सा प्लेट डाल देते हैं, ठीक है, so that's a different story. Okay, there is a reason to it. They think that their women are very gorgeous and the दूसरे कबीले के जो लोग हैं वो आकर के उन पे रेड करते हैं, ठीक है, so as to abduct the women of their कबीला, ठीक है, so in that case तो women अपने फेस को थोड़ा सा डिसफिगर करती है, ठीक है, so as to look little less beautiful, ठीक है, to the raiders, ठीक है। But anyways, we are talking about the AFCAT advertisement over here. Narcotics वगैरह मना है, ठीक है, use and possession of narcotics is banned. Candidates may be tested for the presence of drugs in the body using medicals, and subsequently during training and service career as an officer, if a candidate is found to be using in possession of narcotics during any time of training service, candidate would be debarred from joining the Indian Air Force or be removed from the service if already joined. So it's non-negotiable. पार्टी शार्टी चलती रहती है, ठीक है, that's not a big deal. बट आप यही सोचो कि भाई यार कोई दारू पी करके जा रहा है प्लेन उड़ाने, तो that's a risky affair, isn't it? Okay. So that's how things are. Conduct of the online
टेस्टिंग फॉर एफकैट एग्जामिनेशन एंड फीस स्ट्रक्चर, थोड़ी बहुत यहाँ पे बात करते हैं। फीस स्ट्रक्चर पहले 250 था, अब इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है, 550 कर दिया। प्रोबेबिलिटी, द मोस्ट प्रोबेबल रीजन बिहाइंड increasing the cost of AFCAT examination is that they want to filter out non-serious candidate, okay, और ये तो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, इनको पैसे रुपए का कभी कोई कमी होता नहीं, ठीक है। हालांकि अब इनके नेगोशिएशन पे भी डिपेंड करता है कि अब ये सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने पैसे बजट में इशू करवा सकते हैं, ठीक है, कितने आप रिक्वायरमेंट्स को आप कितने फोर्सफुली, कितने अच्छे तरीके से आप सरकार को रखते हो, तो कि सरकार आपको जो बजट एलोकेट कर दे, ठीक है। तो 550 प्लस जीएसटी, जीएसटी अगर 18% हो गया, मान लो 20% भी होता है, ठीक है, तो 110 रुपये और जोड़ लो इधर, ठीक है, तो आपके 660 रुपये के आसपास बनेंगे, ठीक है। इतने अकाउंट में रहना, सारे खा पी के ख़त्म मत कर देना मेरी तरह, ठीक है। तो फिर आप फॉर्म भर दो, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, शादी ब्याह के चक्कर में अभी नहीं पड़ना है, ठीक है। कहते हैं अभी कि अभी आ जाओ, एकेडमी में आ जाओ, ट्रेनिंग कर लो, ठीक है, ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है, अपने ट्रेड में काम धंधा शुरू कर दो, फ्लाइंग हो तो फिर फ्लाइंग ब्रांच में हो तो फिर उड़ाओ, ठीक है, अपने प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, वॉट एवर, ठीक है, और आप जिस भी ट्रेड में वहाँ पे जाओ, अपना अपना शुरू करो, ठीक है। तो आपको जो है शादी ब्याह का परमिशन नहीं है, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स और अप टिल द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स एंड मैरिज इज नॉट परमिशन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी शादी ब्याह नहीं करना है, ठीक है। कैंडिडेट हु मैरिज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शैल बी डिस्चार्ज्ड एंड will be liable to refund all expenditure incurred on him or her by the government, ठीक है। और इसके बाद है कि आपके पास एक यूनिक रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, इसी पे आपको नोटिफिकेशन, और इसके बाद है फिर जो इन्फॉर्मेशन आप एप्लीकेशन फॉर्म में डालोगे वही आपका फाइनल होगा और आपका अमेंडमेंट नहीं होगा, ठीक है। हालांकि एडमिट कार्ड में अगर आप गलती करते हो तो, ठीक है, दिस इज द सेकंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आप गलती मत करना, दिस इज माय वन सेंट एडवाइस, ठीक है, ठीक है। तो होता ना कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक कर देते, जल्दी जल्दी में टाइप करना है, भाई 30 तारीख को फॉर्म डाल रहे, लेट हो गया, ठीक है। तो इन केस इफ यू मेक ए मिस्टेक तो आपको एफिडेविट डालने का आगे चल के ऑप्शन रहता है, ठीक है, बट आई डू नॉट सजेस्ट टू मेक ए मिस्टेक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि नो अमेंडमेंट्स, ठीक है। आपको एसएसबी के लिए ऑल ऑफ भी कर दे, ठीक है, बट देन उनको फिर ये लगे कि अरे यार बच्चा थोड़ा सा सीरियस है नहीं इस चीज़ को लेकर के, समझे, तो नॉन सीरियस कैंडिडेट जैसे में भी आपको समझा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए बड़े केयरफुल तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना। टीए डीए अगर आप जा रहे हो एफकैट एंट्री के, ठीक है, तो नो टीए इज एडमिसेबल इफ यू हैव ऑलरेडी अपेयर्ड फॉर द सेम टाइप ऑफ एंट्री एट एनी ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो एनी टाइप ऑफ एंट्री एट एनी सिलेक्शन बोर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप पीसी परमानेंट कमीशन के लिए जा रहे हो तो एक बार आप ये एफकैट के थ्रू आप एसएसबी जा रहे हो, बट इसके पहले आप ओटीए का एक बार जा रखे हो, ठीक है। तो ओटीए में क्या होता है, एसएससी होता है, ठीक है, तो वहाँ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, बट इसके पहले आपने सिर्फ एनडीए और सीडीएस का ही गया था, ठीक है, एनडीए और सीडीएस का ही गया था परमानेंट कमीशन के लिए। सो इन दैट केस आपको इस वाले अटेम्प्ट में आपको टीए मिलेगा, और टीए मिलेगा आपको एसी थर्ड का और एसी चेयर कार का, और अदरवाइज आपका जो बिल है उसके हिसाब से मिलेगा, और दे विल कैलकुलेट द मिनिमम फेयर फ्रॉम योर सोर्स स्टेशन जो कि आप डालोगे एप्लीकेशन फॉर्म में, टू द योर इंटरव्यू प्लेस wherever it is, Gandhinagar, Varanasi, Dehradun or Guwahati or Mysore. So in that case they will calculate it this way and they will give you the actual amount, okay, जो भी आपकी जो lowest amount रहेंगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। फिजिकल कंडीशनिंग में आपको एडवाइस किया जाता है कि आप 1 माइल दौड़ें, ठीक है, 10 मिनट्स में, 10 पुशअप करें, 3 चिनअप करें, ठीक है, इतना करें ताकि आप जो है थोड़ा बहुत मेडिकली आई मीन फिजिकली फिट रहे,
so as to, you can go undergo training in the Air Force Academy, right? Okay. So, ladies and gentlemen, this was your one pager notification. Vacancies are good. Vacancies are good. There are more than 16, 16, 32. There's close to 280 vacancies out there. ठीक है, समझे? और तो आपको जो है वैकेंसीज अच्छे खासे हैं, ठीक है, तो आप इस पे लग जाओ, ठीक है। अब और आपकी एक बार फिर से आइटरेट कर देता हूँ कि आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 30 दिसंबर, बट आई डू नॉट सजेस्ट यू गाइस टू डिले। आप इस वीक में फॉर्म डाल दो और बाकी फिर देखते हैं। आप इस वीक तक फॉर्म डाल दोगे लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड wanted to mention over here in passing that by the end of this month, the end of this month is the 31st of December, I'll be launching a course, an AFCAT course, an AFCAT written examination course for you guys. Okay, it will be priced very, very, at a affordable rate to you. And my plan is that I'll make a 200 hours का course, ठीक है, as per the syllabus of AFCAT, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि एक बार सिलेबस जो है, एक बार कोर्स को प्रिपेयर कर दिए तो इसी कोर्स को आपको बार बार घसीट घसीट के आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक सिंस आई हैव अपीयर्ड फॉर AFCAT, CDS, NDA, and all for more than 14 of the times, and I have qualified it almost all the times. Okay, except barring a few attempts. I guess one I did not pass for OTA. ठीक है, क्योंकि GS was weak at that point of time. I think I can help you with that. So stay tuned in this space, and I'll come back again so as to talk more about it.